सॉरी मैम, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मैम पहले प्रोडक्ट बनाएंगे ना। पहले पूछ रहे हो बता रहे हो मैम बता रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट बनाना है કૃણાલ સાચી વાત છે वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रोडक्ट फर्स्ट ये भाई नो हवार में एक पार्टी कॉन्टेक्स्ट बात करी उनके एक जगह रखे पहले कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे हम। कैमरा कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं आपको पहले ग्राउंड फ्लोर मैंने कॉन्टेक्स्ट बना के रखे हैं मैम। ये 25 कैमरा आपने बना के रखे हैं यस मैम। भेजिए હતા એ ખોલી અને બધા કેમેરા પાસે એને બેઝમેન્ટ પર ओके ફિટ કરવા प्रोडक्ट्स बनाए Yes, ma'am. ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કરી દીધું प्रोडक्ट्स आल्सो क्रिएटेड ખોલી અને ફિટ કરવા यस मैम। બીજા કંઈક 27 કે 30 જેવા કેમેરા આઈપી લગાવવાના એમાં મારો डेयरी प्रोडक्ट्स के Okay. लिए मैंने बनाए मैम। મારા कोटेशन કરતા 30% ओके वेट એટલે પાલતુ બેટા. કીધું કે કે જો ખોલીને ફિટ કરવાનું જયદીપ સોલંકી. ખોલવાનું અલગ થશે ફિટ કરવાનું जयदीप सोलंकी એ આપણા માણસો ખોલે તો એ સાજ લેવાના જ છે એ ફિટ કરે તો સાજ લેવાના જ છે होस्ट काइंडली रिमूव जयदीप खुशबू पंचाल એને ઈ ભાવ આપ્યો खुशबू पंचाल એનો બાપ નીકળો એના કરતા એનું કોટેશન બીજા ત્રીજા હાઉસ વાળા કરતા होस्ट रिमूव खुशबू पंचाल कहकशा આપણે કેમેરાની ફિલ્ડમાં જ નીકળી જશે જો આવું થશે ને Can you hear me? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay, Kahkasha, give two products name to Krunal. Okay. ખાલી એમાં નહીં એમાં હોય તો ઠીક આ તો કચરો ભાવ કરે સીસી પણ તે હું તમને કહું 2400-2500 રૂપિયાનું બોક્સ આવે 305 વન ટાઈમ કરીને છૂટું જવાનું વસ્તુ હોય તમારે સર પેમેન્ટ આવી ગયા પછી કોલ બોલ ઉપાડો હોય તો તમારે માથા Go to new. તમે સાચું હોય તો માથાકૂટ હોય ને Mobile phone. હા ચપ્પા મારી આળામાં डेयरी प्रोडक्ट्स में मोबाइल फ़ोन का क्या काम? આ वांधो नहीं अच्छा डेयरी प्रोडक्ट्स सुनो बनाने सुनो अभी डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होंगे वो स्टोरेबल होता है एक बार वो भी देख लो શું ચાલે કહો બીજું એણે 14 કેમેરા 11 કેમેરા કે 6.5 મીટર કેબલિંગ બધું લેબર વેબર બધું હંગાતે ઇન્ક્લુડિંગ જીએસટી લાખ રૂપિયામાં ગણિત બધી મજૂરી કાઢતા 7,000 રૂપિયા છૂટતા હતા બધી મજૂરી કાઢતા મેક્સિમમ પણ સાત છૂટતા હોય એનો સાહેબ સર્વિસ તો આપતી હોય ને સાત થી મતલબ હોય मैम अगर रेफ्रिजरेटेड होगा तो फिर हम स्टोर कर सकते વરદી हैं। કેડે એને 2 મહિના કેડે જવાનું જોઈએ તો ફોન બોલ ના ઉઠાડે लेकिन उसमें भी ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकेंगे मिल्क ने वो जो है ना वो અમે ભાઈ કઈ કીધું નહીં એને કીધું છોડ જે હોય તમે વાત નહીં સાંભળો એક ક્લાયન્ટે કાલે મને એવું કીધું કે એક સોસાયટીનું એએમસી હતું કે 65,000 પ્રાઇસ હતી એએમસીનો ભાવ આપ્યો અને P2P નેટવર્ક सो मैम डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टोरेबल कर दूं कि कंज्यूमेबल कर दूं? 130 में चाय लेकर आना 15 P2P હતા એમાં 65,000 ऐसे प्रोडक्ट्स लेना जो स्टोरेबल हो Don't use consumable products. क्योंकि हमें रूट्स भी डिजाइन करना है વર્ષ દિવસનું એએમસી ના કરે કરાય એ કે ઈ સોસાયટીમાં કે એવડી સોસાયટી છે વેસ્ટમાંથી ટીપી રોડ હસોડો નીકળો એ કે સોસાયટીને लैपटॉप ले लो ना 2 લીટર પેટ્રોલ પૂરું થઈ જાય એવડી સોસાયટી છે બેથી તો પેટ્રોલ ઠીક છે પણ ના. ના કરાય તે P2P નેટવર્ક છે વિશાલ P2P વાળું એટલું ખાસ કરે ખબર પડે જ છે અમને અમે ખાલી બધું કહેવાય અહીંયા 10,000 ખાલી P2P નેટવર્ક અમારું હતું ને એની અંદર ખાલી ખાલી મોકલો ને કારીગર ત્યાંથી 2 કલાક કામ કરી 2500 રૂપિયા લઈને ગયો મારી હું અહીંયાથી માણસ મોકલું ને તો મારો ખર્ચો 3,000 નીચે ના થાય તો મારો તો એને એ જ મને પોસે હા એટલે કહેવાનો નોટ તેવો છે પછી તમારે જોવું પડે ગણતરી મારવી પડે એટલે ચડે ને એટલે 500 રૂપિયા નીચે ના લે પૈસા હા એવું જોઈએ એ લોકો પછી ટીમ બી એવી હોય P2P વાળા તો બે જણા જુએ सेकंड प्रोडक्ट में लैपटॉप ग्लास ले लो 10 માળનો જેવડો ઊંચો થાંભલો છે માણસ સડે ઉતરે ને એટલે 2500 રૂપિયાના ગણી જ લેવા થાય ખર્ચો થાય
અરે પોતાની ટીમ તો એ ના પૂછ 13000 અને ઈ માણસ એટલો પતલો હોય ને એમ લાગે કે આ ભાઈ ભાઈ હતા ઈ કે મારા કરતા ઈ કે એટલો પતલો હોય એ જાડો માણસ થઈને ઉપર ચડી ન શકે ના ચડે આ કામ કરે એવા કચરો એવું આ બધા ઉમા ઇમ્પોર્ટર છે ને જેમ इसमें इसमें सेल्स प्राइस नहीं आएगी ना, ये अगर परचेज करेंगे तो, सॉरी और सॉरी वहाँ पर कैन भी परचेज कर दो, कैन भी सोल्ड અમે कर। તો રેફરન્સ આવે તમે તો કોઈ મેં તો ભાવ આપ્યું હોય મારા अच्छा, आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया बेटा? विच प्रोडक्ट हैव यू टेकन? सर કેટલાય ક્લાયન્ટ लैपटॉप लिया है मैम। અરે તમે लैपटॉप लिया, अभी आपने लैपटॉप बनाया. પાસેથી કેમેરા લઈને Yes. ક્લાયન્ટ ને જીરો Okay, have you settled configuration में settings में जाके have you did the process which we used to do every time? એવું એવું જ કામ એ ખાલી દે वो किया? એનું બી આવ્યું क्या करना था कहकशा? શું કામ કરે मैम आपने 2 प्रोडक्ट बनाने को कहा तो वो नहीं, वो तो ठीक ये है, पर आप रिप्लेनिशमेंट वाला ऑप्शन बाकी है करने का। થઈ ની જીરો हाँ, पर अगर रूट सेट करना है, क्योंकि सेटिंग्स में जब प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसके पहले ये सब कर देने का. हाँ हाँ हाँ। રૂપિયા મીટર है कम तो क्या करने का है पता है? मल्टी स्टेप रूट्स में क्लिक सेव बताओ इसको, कृणाल को. सेव सेव अगेन गो टू कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए क्या भाई रूट्स હું નહીં કીધું આ તો તમે આ એટલો ड्रॉप डाउन मेनू મને એમ કે ભાઈ ને નહીં એ બી નહીં आर्काइव કસ્ટમર રેફરન્સ છે ને સા બધું પછી ઓલું થઈ જાય रिप्लेनिशमेंट ऑन ऑर्डर पे क्लिक एक्शंस में जाके કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નહીં નથી और आता है આપણે બી પી લઈએ એમ પણ એવું કોઈ છે गो टू प्रोडक्ट તડકાની लैपटॉप पर जाके इन्वेंटरी रिप्लेनिशमेंट ऑन ऑर्डर मैन्युफैक्चर तीनों पे टिक और लैपटॉप ग्लास पर जाके यहाँ पर बाय और रिप्लेनिश ऑन ऑर्डर 20% ક્લાયન્ટ એવું હોય છે તમને ओके ओके डन मैम પ્રોફિટ રેટિંગ કામ કરતો હશે Hmm. બાકી 5% મળ્યા કર્યું ન કર્યું એવું જ છે Done? Okay, great. So now we have created laptop. Laptop में you have created the roots. માણસો તમને હું કહું એવું જે કરે છે ને એવું જે કરે છે ને એ લોકો ટકતા નહીં કામ નો ટકે પણ માર્કેટ બગાડતો જાય એનું So કસ્ટમર ને તમારા રેટ ની ખબર પડી જાય ત્યાં તમે લાસા ના થઈ કઈ કરો ત્યાં તો ના પડે કઈ કસ્ટમર તો કઈ દો તો બીજી જોઈ જાવ નહીં કરવાનું કામ એમાં શું હોય વિચારવાનું હું તો નહીં કરવા માંગતો આ કામ સર્વિસ તમારે આપવી હોય ને એટલે 20 થી 25% નું માર્જિન હોય તો જ તમે આપી શકો ये रूट्स तो हो गया ना मैम hmm. હું તો નહીં કરવા Hmm. चलिए आगे बढ़िए. पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनाते हैं. पहले क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं पहले? मौलिक. What can we prepare? પાણીની બોટલ ક્યાં છે તારી? પાણીની બોટલ લઈ જા. क्या बनाते हैं पहले? मौलिक. रिप्लेनिश करना होगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटी रखनी होगी ना पहले, फिर परचेस करेंगे ना रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए. मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है तो हमें बिल ऑफ मटेरियल तो बनाना पड़ेगा ना. मौलिक, જો નહીં તો તમારે आप लोग भूल गए? हम लोगों ने परसों ही किया था. मैन्युफैक्चरिंग में जाओ. તો હું જવાનું નહીં કરવાનું वो मुझे पता नहीं वो. કૃણાલ, એટલે કહેવાય એનાથી યાદ રાખો, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર્ડર પછી બનાવવાનો. પહેલા આપણે બિલ ઓફ મટીરિયલ બનાવવાનો. બિલ ઓફ મટીરિયલ, વોટ ઇઝ બિલ ઓફ મટીરિયલ કૃણાલ? ઉમા ઇમ્પોર્ટર વાળા બીજાનો કેસ મને કૃણાલ, વોટ ઇઝ બિલ ઓફ મટીરિયલ? વોલ્ટેજ તમે મને ખબર છે તમારું हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका बिल होता है થઈ ગયું ને એટલે મને એટલે क्या मैन्युफैक्चरिंग का बिल? हम लोग तो बहुत सारी चीजें उसके लिए बिल क्यों बनाना है?
लिए बिल क्यों बनाना है? कृतिका, मैम कृतिका को शायद नेट इश्यू था, तो वो उसने मुझे होस्ट बनाने की ट्राई की, लेकिन होस्ट नहीं बन रहा था और नेट इश्यू की वजह से शायद वो मीटिंग से लेफ्ट हो गई है। तो हु इज द होस्ट नाउ ऑफ द क्लास? मैम उसने ट्राई किया मुझे होस्ट बनाने का, लेकिन नहीं हुआ। ओके, अमीशा टंडन। Yes, अमीशा, व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल? What do you mean by bill of material? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इन द एग्जामिनेशन, ये श्योर है। अब बोलो, what do you mean by bill of material? चलो हमारी जरूर थी। मुझे आंसर कौन देगा? अमीशा को पता नहीं है। ओके, डेनिशा। कहीं वांधो नहीं, कहीं હોય તો કેવડાવો। डेनिशा, હાલમાં તો કોઈ છે નહીં, તમારા 30 રૂપિયા મંડ્યા ને डेनिशा, પેમેન્ટ Yes, ma'am. can you just let me know what is bill of material? હા યાર હમણાં કરી ગઈ કાલે Ma'am, bill of material one type of product structure जिसमें रॉ मटेरियल्स भी आ जाता है, जो भी असेंबल करना होता है वो भी आ जाता है, क्वांटिटीज आ जाती है, वो क्या है? एक टाइप का प्रोडक्ट का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है उसमें, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, यानी कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में नहीं आता है वो सब। बिल ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में डिफरेंस क्या है? चलो अभी ये बता दो। चलो, निधि इज रेज्ड हर हैंड। निधि। Yes, ma'am. Bill of material means it includes the components required to prepare a finished product. All the steps. Very good. So that is what is called bill of material, right? What is bill of material actually? It is a structured list, or it is that kind of window or that kind of application where अगर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाना है तो हमको उसके कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड उसकी जरूरत होगी। इफ दैट कंपोनेंट्स आर देयर वी कैन मेक अ फिनिश प्रोडक्ट, राइट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बॉम, राइट? सिंपल है। एक डिश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उस इंग्रेडिएंट्स के लिए हम लोग उसका लिस्ट बनाते हैं कि एक सब्जी बनाने के लिए इतना ग्राम, इतना केजी, इतना ml, इतना gml, वो सब। तो वो मेरा क्या बन जाता है? वो इंग्रेडिएंट्स को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, तो अभी मैंने पूछा बिल ऑफ मटेरियल। अब मुझे ये बताओ जानवी कि what is the difference between bill of material and manufacturing order? क्या कशा? Yes, ma'am. क्या है डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर एंड बिल ऑफ मटेरियल? मैम मुझे आइडिया नहीं है इतना, बिल ऑफ मटेरियल क्या है वो पता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डर वो थोड़ा कंफ्यूजन है। मैम we can say manufacturing order is like instructions for producing something or manufacturing something. It is like an order required to manufacture a particular item. ये स्मिथ बोलो। हेलो मैम। मैम बिल ऑफ मटेरियल होता है वो एक लिस्ट होती है जिसमें कंपोनेंट्स यहाँ एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट मेंशन की गई होती है जो रिक्वायर्ड होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जो होता है उसमें डायरेक्ट मेंशन किया गया होता है स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट और उसकी स्केड्यूलिंग डिटेल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए मेंशन किया जाता है।
can you just repeat once again please? श्योर। Yeah. बिल ऑफ मटेरियल्स जो होता है उसमें कोई भी प्रोडक्ट के लिस्ट पार्ट्स, उसके जो पार्ट्स वगैरह होती है उसकी सारी लिस्ट वगैरह दी जाती है टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। Okay. और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर जो होता है उसमें एक डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया जाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बताया जाता है, उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी आ गई, उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स आ गई, वो मेंशन की जाती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। पर नहीं तो वही चीज तो हम लोग बिल ऑफ मटेरियल में बनाते हैं। उसमें मैडम उसके कंपोनेंट पार्ट्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में शायद पूरा प्रोडक्ट दिया जाता है सब। तो याद रखना ये डिफरेंस सब याद रखना। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर कंसिस्ट ओके बिल ऑफ मटेरियल, पर बिल ऑफ मटेरियल डोंट इज नॉट गोइंग टू कंसिस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? बिल ऑफ मटेरियल मतलब बॉम्ब बनाते हैं एंड हम वर्क ऑर्डर बनाते हैं, सो दैट हमारा मैन्युफैक्चरिंग टास्क और वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। समझ में आया? उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर कंसिस्ट बिल ऑफ मटेरियल। और बिल ऑफ मटेरियल क्या है? बिल ऑफ मटेरियल के अंदर इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है जो एक फिनिश प्रोडक्ट को लगता है। तो जब मैंने बोला जब हमारा प्रोडक्ट रिप्लेनिशमेंट के नीचे है तो हमने बोला मैन्युफैक्चर करो, तो जब वो मैन्युफैक्चर करेगा तो ऑलरेडी मेरा बॉम्ब बिल ऑफ मटेरियल बना हुआ है, तो बिल ऑफ मटेरियल को लेता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर देता है मैन्युअल्स को यानी हमारे वर्कर्स को या हमारी मशीन्स को, और मशीन्स क्या करेगी? मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। Please students now see, if I am going to ask little bit of theory more in the examination, then these kind of questions would be there in exams. Okay, what is the difference between ammo and bomb? Then you don't have to find what is ammo and what is bomb. It's manufacturing order and bill of materials. Now you said that we need more descriptive, so this is descriptive. Okay, getting? Everyone in my class, when I started the class there were something 39 or 34 students. Now I have 27 students. Meet, where is Meet in the class? Meet is there? Meet is there in the class? CR है क्लास में कि नहीं है? मैम शायद उसको मेडिकल इश्यू था तो वो भी नहीं है। अच्छा, तो who is going to record the details now? विशाल आप करोगे? श्योर मैम। तो आप अभी जो रिकॉर्ड करोगे हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेंगे, यही स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे और यही स्क्रीनशॉट आप मीत को भेजेंगे, सो दैट ही कैन रिकॉर्ड द डिटेल्स। एंड इफ इज नॉट एबल टू डू दैट आप रिकॉर्ड कर देना डिटेल्स, ठीक है? यस कृणाल मैम, कैन वी स्टार्ट? कृणाल बिल ऑफ मटेरियल बनाना स्टार्ट करो, प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? And let me be very clear over here, मुझे कुछ लोगों का नाम इतने अच्छे से पता चल गया क्योंकि यही लोग मुझे रोज दिखते हैं। एंड यही लोगों के पेपर्स और इंटरनल्स दोनों अच्छे जाएंगे और अच्छे मिलेंगे। मैम हाँ बोलो बोलो। इसमें ऑपरेशंस ऐड करना हो तो मैं क्या करना, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, कुछ नहीं मिलता है सीधा सेटिंग्स में जाओ। फिर क्या करना था? कैसे बनाते हैं ऑपरेशंस? बहुत आगे के लेक्चर में थोड़ा बहुत लंबा चला था ना इसलिए याद नहीं रहा मैम। अरे 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 लंबा चला था तो याद ना रहा? वो बहुत सारे सेटिंग्स किए थे ना मैम हमने, इसलिए मेरे को सामने ही दिख रहा है। सब कॉन्टैक्टिंग मैम रीड करो, रीड। वर्षा शांत हो गई अब तक एकदम? अभी यही तो है वर्क ऑर्डर। आ गया? मीत, you have raised your hand. You have any doubt? मीत has any doubt? No ma'am. Okay. चलिए मीत बराबर कर रहे हैं, कृणाल ने बराबर किया। Easy fine? Easy right? Yes ma'am. Okay, wait, just a minute. Vishal, your second question was something के defective piece होता है तो उसका क्या करते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था एक मैन्युफैक्चरिंग कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग एग्जांपल दिया था आप लोगों को। Did I give example of that? No ma'am. I didn't give, right? So यहाँ पे आपको क्वालिटी के नीचे बाय प्रोडक्ट दिख रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल डाउन।
बाय प्रोडक्ट दिख रहा है? कैन यू सी द बाय प्रोडक्ट? या व्हाट डू यू मीन बाय बाय प्रोडक्ट? व्हाट डू यू मीन बाय बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट क्या होता है ये बताओ. Come on, don't act as if you don't know anything. एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट. हाँ? Which is other than the main product. The product we get other than the main product. Product we get other than the main product. कौन बोला ये? Who said? Ma'am, Aditi. Aditi. Yes, to some extent you are right. I'm going to show you how a cotton is being made, and when we'll see this example, I'll let you know कि हमारे ERP में बाय प्रोडक्ट भी हम लोग बनाते हैं. तो कॉटन है ना, बनता कैसे है? एक फूल से. कॉटन का फूल आता है. कपास के है ना अपने गुजराती में, राइट? there are many people who are Gujarati. I hope you know that कॉटन को हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं? कपास. तो उस कॉटन का फूल आता है. It's a flower. It's been grown in the field, right? It's उसकी खेती होती है, उसके इरिगेशन होता है. वहां से लेके उसका बाय प्रोडक्ट तक तो हम लोग तो बनाते हैं क्या? कॉटन. पर कॉटन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ आइडिया? कॉटन से क्या क्या बनता है? हाँ, कॉटन सीड्स, कॉटन क्लॉथ. फिर ये तो आपका कॉटन का ही प्रोडक्ट हो गया. कॉटन का बाय प्रोडक्ट, कॉटन से क्या क्या बनता है? आपने बोला कपड़े. ओके, फिर देन इसका ऑयल बनता है, कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल. यस मैम. ओके, आपको ये पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर इसका मैच बॉक्स होता है ना, माचिस की तिल्ली, राइट? वी से मैच बॉक्स. ये जो मैच बॉक्स की मैच स्टिक होती है ना, ये कॉटन का बाय प्रोडक्ट से बनता है. कॉटन में से स्क्रैप मटेरियल निकलता है. वो स्क्रैप मटेरियल है ना, एक उसके भी दो यूज होते हैं. सो कॉटन इज अ प्रोडक्ट एंड बनाना इज अ प्रोडक्ट. उसका कोई भी बाय प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता. यानी उसका अगर स्क्रैप निकलता है तो वो भी हमें काम लगता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग में. तो कैसे? तो कॉटन जो होता है, कॉटन की सीड्स में से हम लोग ऑयल निकालते हैं. कॉटन को कंप्रेस किया जाता है, तो वहां उस कॉटन से वी प्रिपेयर सो मेनी थिंग्स. ये तो फर्स्ट हो गया. सेकंड ऑयल, एंड थर्ड उसके बाय प्रोडक्ट में निकलता है, दैट इज मैच स्टिक. तो उसका जो स्क्रैप होता है ना कॉटन का, वो कॉटन का स्क्रैप हम लोग वी सेल, एंड the company who manufactures the matchstick they use these scraps. और सेकंड, ये स्क्रैप जाता है कहाँ पे? टू द काउ फार्मिंग इंडस्ट्री. ठीक है, जहाँ पे दे कीप दीज फार्म, यू कैन से व्हाट वी से फार्म एनिमल्स, राइट? उनको खाने के लिए ये स्क्रैप जाता है. तो ये स्क्रैप जो होता है, दे जस्ट सेंड इट इन क्विंटल्स, एंड स्क्रैप के भाव में हम लोग बोलते हैं. बट यू नो द कॉटन इज दैट प्रोडक्ट. उसका कोई बाय प्रोडक्ट भी वेस्ट नहीं होता. उसका स्क्रैप निकलता है उसको. सो कॉटन, आप अगर गुजरात, नॉर्थ गुजरात में जाएंगे, दैट इज कड़ी साइड आप जाएंगे, तो आपको इतनी सारी कॉटन की फैक्ट्रीज मिलेंगी वहां पे. एंड व्हेन यू सी दैट, यू विल फाइंड इट the people are very rich who are owning this cotton industry wala products, because uska ek bhi product waste nahi jata. I'll just show you, just pin me and I'll show you कि cotton का पूरा functioning कैसे होता है, right? You can just pin me. I'll share the screen. Why I'm showing you this? Because if in examination I ask you a certain kind of question, you are supposed to answer me with an example, and the example is like this. ये अपना कौन सा लेक्चर हुआ? The exact origins of the cotton plant are unknown, although archaeologists have unearthed pieces of cotton cloth over 7,000 years old. Through the centuries, cotton fiber was traditionally processed by hand until the early 18th century. This is the cotton flower. ये flower है. इसमें से हम लोग cotton को अलग करते हैं. यहाँ के उसके स्टेप्स देखना, उसके प्रोसेसेस देखना.
ठीक है, उसके वर्क फ्लोज देखना कि कॉटन को हम लोग अलग करते हैं, वी जस्ट सेग्रीगेट द कॉटन. नाउ कॉटन इज बीन वॉश्ड, कॉटन इज बीन क्लीन्ड सेवरल टाइम्स, एंड वो जब क्लीन होता है सेवरल टाइम्स उसके स्क्रैप्स निकलते हैं, वो स्क्रैप की बात की जा रही है. देखिए, when the first automated processing machine was invented. Before cotton arrives at the textile mill to be spun into thread and woven into fabric, it makes the journey from field to bale. Cotton takes about 5 months to grow from a planted seed to a ripe plant. This harvesting machine, called a cotton picker, plucks fluffy seed cotton out of the plant's boll, leaving a trail of burrs and sticks behind. The machine empties the plucked cotton into a tractor-drawn buggy. This machine builds the seed cotton into a humongous rectangular block called a module. A truck transports the module to the processing plant, known as a cotton gin. Once the cotton arrives to the processing plant, okay, now these are the scraps. If you can see, this is the original cotton, उसमें से स्क्रैप निकलता है. दैट मीन्स these are the seeds, these are the leaves which are being attached, there are some thorns. फिर ये कॉटन, इस तरीके से कॉटन बनता है. वापस उसका हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस में डालते हैं, उसमें से और हमें ये इस टाइप के स्क्रैप्स मिलते हैं, एंड देन अगेन वी गेट दिस. तो पता है कॉटन कैसे है, वो हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, मतलब वो डस्ट को एब्जॉर्ब कर देगा. तो थोड़ी देर के लिए भी हमने कॉटन को ओपन एयर में रखा, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द डस्ट पार्टिकल्स. तो ये कंटिन्यूअसली क्लीन होता रहता है. to the processing plant, sticks and burrs are removed, as well as any lingering debris and seeds. A truck dumps the module into a feeder, which moves the packed seed cotton into a dispenser. The ground seed cotton falls onto a conveyor belt which leads to the hot box. The hot box mixes the seed cotton with hot air, which allows the moisture to evaporate, making the seed cotton easier to clean. A machine called the wad buster breaks up the clumps of seed cotton by tossing it against a screen. Loose debris falls through the screen openings down a narrow chute. Then the seed cotton moves through a machine called the steady flow, which divides it equally between two processing lines. On each line, the seed cotton enters a burr machine, which grabs the seed cotton with a circular saw and swings it against metal bars. The centrifugal force shakes off the heavier debris. The seed cotton exits the machine through one pipe and the debris through another. A large auger transfers the debris to. So you got what it said, that एक पाइप से debris मतलब के कचरा स्क्रैप निकलता है और दूसरे पाइप से सीड निकलती है, और कॉटन अलग से एक जगह पे एक्यूमुलेट होता है. आपने देखा कितनी बार ये क्लीन हुआ है. A waste chute and out of the plant. The seed cotton is ready for the final stage of processing. A network of pipes feeds a row of machines called gin stands. The gin stand separates the seed from the fluffy stuff called the lint. Inside each stand are 116 circular saws, which are arranged horizontally, each separated by a steel rib. The saw teeth grab the seed cotton and pull the lint through the narrow gap between saw and rib. The seeds are too large to pass through, so it spins in front of the rib, then drops into a conveyor. The lint goes into a flue which leads to the packing area. Cottonseed is sold as livestock feed, particularly for dairy cows. It contains 23% protein, 20% fat, and 25% fiber. Cottonseed is also milled into cottonseed oil, a cooking oil that's a common ingredient in salad dressings and mayonnaise. The cotton lint is now ready to be formed into bales. Pipes feed the loose lint to the press area.
When it arrives, a pusher moves the lint into a machine called the tramper, which shoves it down into a bale-shaped box. Once the box reaches 500 pounds of cotton lint, a press compacts the lint and tie wraps the bale. Next, a conveyor moves the bale to a bagging machine and past grippers, which pull a sample from each side. While the bale slides into a protective plastic bag, the grippers deposit the sample into a bin. Technicians label the bale with an ID number, then open the bin to retrieve the corresponding sample. Then the sample is bagged and labeled with the bale ID number. The factory submits the sample to the United States Department. So this is the bale, right? This is the sample. इसका आईडी बनता है. Listen carefully. किस किस का आईडी बनेगा? एक आईडी बनता है जो हमने बेल बनाया, मतलब कि एक बड़ा सा एक आपने देखा होगा कि लिंट बना है, राइट? वो कॉटन जा रहा है, उसका एक आईडी बना. उस कॉटन में से हम लोगों ने सैंपल निकाला क्योंकि उसका टेस्टिंग होता है. एंड दे विल चेक द स्ट्रैंड्स मतलब कि वो कॉटन को दोनों साइड से खींचते हैं. एंड दे विल चेक कि कितने लंबा उसका स्ट्रैंड है, मतलब कि कितना उन्होंने हॉट एयर में डाला है ताकि उसका स्ट्रैंड इतना फ्लेक्सिबल हुआ है, राइट? तो वो टेस्टिंग में जाता है, तो उसका आईडी अलग बनता है. और इतने कॉटन जो हम लोगों ने प्रिपेयर किए, मतलब के मैन्युफैक्चर किए, समझो क्विंटल्स ऑफ आया, उसमें से कितनी डेब्रीज निकली वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मुझे पता चलती है. जब वो दूसरे पाइप से निकलता है, वी विल वे. विशाल, आपका ये क्वेश्चन था ना कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसे पता चलता है कि उस टाइम पे ये जो डेब्रीज निकलती है, मतलब कि स्क्रैप निकलता है एक पाइप से, वहां से वी विल कलेक्ट दोस स्क्रैप्स एंड इट इज नॉट ऑलवेज द सेम. ठीक है, कुछ क्विंटल में से सेम टाइम हमने सेम क्विंटल डाला बट डेब्रिज सेम निकले, यानी स्क्रैप सेम निकले. इट इज नॉट कंपल्सरी, इट मे वेरी, राइट? दीज आर सम प्रोडक्ट्स व्हिच यू कांट एस्टिमेट आल्सो. आप वो सोच नहीं सकते, उसको प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं. तो वो स्क्रैप्स कलेक्ट किया, उसका वेइंग मशीन से उसको वे किया, मतलब कि उसका वजन किया, फिर उसको बोरी में डाला, उसको पैकिंग किया और उसका एक अलग से आईडी बना. ठीक है, सो दीज आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. बट आपके मशीन्स में ईआरपी सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, तो जैसे ही आपने ये वेइंग मशीन में डाला, पता चला कि अरे ये तो सिर्फ ये 2 kg या 10 kg है. आउट ऑफ 50 क्विंटल्स ऑफ कॉटन वी गेट 2 kg ऑफ स्क्रैप्स, राइट? 2 kg ऑफ स्क्रैप्स एंड 500 ग्राम्स ऑफ सीड्स. ओके, इस हिसाब से चलते हैं. तो ये सीड्स का अलग से सीलिंग होता है और आपकी कंपनी ये सीड्स का ऑयल बनाती है, तो ये सीड जाती है दूसरे वर्क स्टेशन में जहां पे सीड ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कॉटन सीड ऑयल का. तो आपका ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपका ही कंपनी है, पर वो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है जहां पे वो सीड्स का हम लोग क्या करते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. अगर आपका इन हाउस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ये सीड्स को हम लोग सेल करते हैं टू आवर कस्टमर्स, टू आवर क्लाइंट्स. आपकी ही कंपनी जो स्क्रैप है, जो हमें कचरा मिला, वो कचरे की माचिस की तिल्ली मैच स्टिक बनाती है, तो वी आर सेंडिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नंबर 3. सो यू नो वी आर अर्निंग. बट हमें क्या ध्यान रखना, हमें क्या ट्रैक रखना है? आप सोचिए इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, तो ईआरपी हर एक चीज का ट्रैक रखता है. Everything it tracks. So you know you have to be very much thorough with manufacturing. फिर इन्वेंट्री आता है और पैरेलली सेल्स परचेज अकाउंट्स चलता रहता है. और इसीलिए उसको ईआरपी दिया, पर पहले उसको हम लोग क्या बोलते थे, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग और फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. क्लियर हुआ सबको, एवरीवन? यस मैम. Yes, ma'am. Department of Agriculture, where it's analyzed for fiber length, cleanliness, color, and other criteria. Once the analysis is complete, the bale is given a grade and processed accordingly. Do you know what's the future? Yeah. Okay. I hope you have pinned me and you have got to know that what we were learning.
सो ये बन जाता है मेरा बाय प्रोडक्ट। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके बाय प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो लैपटॉप जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमें पता है कि इसका बाय प्रोडक्ट निकलता ही है, पर कितना वजन, उसका यूनिट कितना निकलता है वो नहीं पता। तो हम लोग बाय प्रोडक्ट के अकाउंट को बना के रखते हैं। जैसे कि लैपटॉप का बाय प्रोडक्ट है कि लैपटॉप बनाते बनाते ऐसा हुआ कि कुछ ग्लासेस बच गए, राइट, वी यूज ग्लास। अब जो वो ग्लास बचा है, वो ग्लास का हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग छोटा सा लैपटॉप का हम लोग वो ग्लास यूज करके वी कैन प्रिपेयर एनीथिंग एल्स, मतलब कि ग्लास से हमारे कंपोनेंट से हम लोगों ने एक दूसरा प्रोडक्ट बना, तो ये मेरा बन गया बाय प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लोग वी आर प्रिपेयरिंग। अब यहाँ पे बॉम्ब टाइप आपको दिख रहा है, मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट किट एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब है कि सेमी फिनिश गुड का प्रोडक्शन आप करते हैं। सेमी फिनिश गुड का प्रोडक्शन का मतलब ये है कि सीड्स है ना, सीड है वो सेमी फिनिश गुड है। सीड कब निकलती है, जब आपने देखा इतना सारा प्रोसेस हुआ, कॉटन फ्लावर आया, फ्लावर को हमने क्लीन किया, क्लीन करने के बाद उसको हम लोगों ने 2-3 बार इवेपोरेशन के साथ, हॉट एयर के साथ वापस क्लीन किया, जहां से हमको लगा कि पहले सीड्स अलग होते हैं, वापस क्लीन किया तो डेब्रीज अलग होते हैं, तीसरी बार क्लीन किया तो अगर छोटे मोटे सीड्स बच गए वो, तो मतलब कि ऑलरेडी एक बार प्रोसेस हो चुका है। एंड देन एक बार जो वो प्रोसेस हो चुका है उसमें से जो हमें वट एवर वी हैव गॉट, वो चीज का हम लोगों ने उसका बाय प्रोडक्ट मतलब कि हम लोग ने सेकेंड उसको बेच दिया वो सीड्स को, यानी वो हो गया सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का दूसरा ओनली द सेलिंग कंपनी, जैसे कि अमेजोन है, इट्स ओनली द सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला थिंग। एवरीथिंग इज बीन मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट यूनिट, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स, कंपोनेंट्स, वी आर जस्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग इट। तो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट आता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट आता है, हमें सिर्फ मेंशन करना है कि हमारे पास ये चीज आई है और हम लोग ये इतना ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या वरना हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यानी हम लोग रेंट पे कुछ चीजें देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी ये ईआरपी सिस्टम पे, ये मॉड्यूल पे हम लोग ज्यादातर वॉर्म टाइप में मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट करते हैं। चलिए, आपने ऑपरेशंस में वर्क स्टेशंस बनाए? ऑपरेशंस में हैव यू क्रिएटेड? देखो नीचे ही है ऑपरेशंस, हाँ नीचे कंपोनेंट्स के बाजू में यू कैन क्रिएट ओवर हियर वर्क सेंटर्स एंड ऑपरेशंस एनीवेयर। हैव यू डिड? क्या बनाएंगे ऑपरेशन में? व्हाट वी विल क्रिएट? कम ऑन। हाँ मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही शायद। किसकी? हाँ मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। आई कैन सी द स्क्रीन। पिन करो ना, कृणाल को पिन करो। नो मैम, नहीं दिख रही है। किया है मैम, नहीं दिख रही। बट मेरे को तो स्क्रीन दिख रही है कृणाल की। कृणाल, कैन यू प्लीज अगेन स्क्रीन शेयर? आपने पिन किया? कृणाल को पिन किया? होस्ट जो भी हो उसको बोलो पिन कर दे, हो जाएगा। कृणाल की स्क्रीन दिख रही है, पिन नहीं है सिर्फ। Why you can't see the pin? अरे उसकी स्क्रीन, I can see the screen. I can also see the अरे screen. जो भी होस्ट हो उसकी स्क्रीन पिन कर दो, सबको दिखेगी। होस्ट है ही नहीं ना बेटा, आप लोग कृणाल को पिन करो ना, कृणाल में जाके पिन करो। यस मैम, दिख रही है। हाँ, उसकी पिन, उसकी स्क्रीन को पिन करो। यस। चलो ऑपरेशंस बताओ। What would be the first operation? Kekasha, tell me the first operation. मदरबोर्ड को क्रिएट करोगे? कृणाल, असेंबली लाइन लिख दो। ऐसे असेंबलिंग मदरबोर्ड, असेंबली लाइन जिसमें हम पार्ट्स को असेंबल करेंगे।
सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन. Students, it's very important. Everyone, please रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको, प्रैक्टिस करो. यू नीड टू डू इट. क्या कशा आपके पास सिस्टम है ना? यस मैम, मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस. आप करते हो? यस. ओके, वेरी गुड. जागृति, यस मैम. डू यू प्रैक्टिस? नो मैम. व्हाई? ये मत बोलना मेरे पास सिस्टम नहीं है, आई विल नॉट एग्री विद दिस पॉइंट. है मैम, सिस्टम तो है. फिर क्यों नहीं करते आप? आपसे करूंगी मैम. वर्क्स अपने ऑपरेशंस में वर्क सेंटर्स क्या लिखा? ऑपरेशंस क्लिक करो. वर्क सेंटर आपने बनाया है KW2? आ गया था मैम, शायद बन गया होगा. शायद. ठीक है, कोई बात नहीं, करिए, आगे करिए. चलो फटाफट, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ. मिनिमम मैक्सिमम अभी तो रिप्लेनिशमेंट में भी करना है. इसको प्रोडक्शन ऑल नहीं करेंगे, ठीक है? अभी प्रोड्यूस ऑल नहीं करेंगे, राइट? we'll just prepare bill of material, only bill of material. क्या कर रहे हो? मैम वो कंपोनेंट्स में डालने के लिए थोड़े प्रोडक्ट्स तो चाहिए होंगे ना लैपटॉप के, इसलिए नहीं बनाए. एक आपने बनाया तो एक ही बनाया. एक ही बनाया, तो मदरबोर्ड और चिप्स और जो कीज का बना दूं ना अभी. एक ही बनाओ. एक ही बना, ठीक है. एक ही बनाओ और एक, बस, ज्यादा नहीं. Meet, how many lectures left and how many lectures completed? मैम 20 लेक्चर्स हो गए, अभी 4 लेक्चर्स बाकी है. आपका 9 तक का क्लास है? हाँ, 9 तक. कल का क्या सिचुएशन है? मैम कल सुबह 8 से 10 एक ही स्लॉट खाली पड़ा है. 9 to 10 कर ले कल सुबह. हाँ, 9 to 10 हो सकता है, पॉसिबल है. हो सकता नहीं, करना ही है. अगर नहीं दिया तो सबको एक एक मिलेगा. नहीं 9 to 10 पक्का. Okay, so what we'll do is tomorrow morning 9 to 10 अपना क्लास रहेगा. Where is he going? उसको गाइड करो, मैंने इसको कुणाल को. अपना मैं अगर डेट देखूं तो टुमारो इज आई गेस 9 to 10. हाँ 9 to 10 होगा. चलो ये वांदो नहीं, 10 वागा પછી મારા क्लास. चलो तो कल हो गया अपना. 5th होगा, 6th होगा एंड 8th होगा एंड 9th होगा. See, if we get more days, we can complete more, we can practice more, and if we get till 9th, तो 9th तक अभी जितना होता है उतना हम लोग करेंगे. मैम 9th को ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को 1 आवर्स ही होगा, वो हम आपको शेड्यूल करके बता देंगे. हाँ, 1 आवर ही चाहिए. उस दिन सोनक सर का भी है लास्ट लेक्चर, इसलिए. हमारा भी लास्ट लेक्चर है. ओके. अभी तक एक भी फैकल्टी के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए, वो हो जाते तो शेड्यूल हो सकता है. पर बाकी सबके कंप्लीट हो गए ना आपके? नहीं हुए मैम. आज सुबह 8 बजे से लेके अभी तक लेक्चर चालू ही है. कितना पढ़ते हो आप लोग?
આજ 5 લેક્ચર છે મેમ. મજા આવી ને ઘરે બેઠા બેઠા ઓનલાઈન કરવાની? વચ્ચે સુઈ ગયા હતા કે નહીં? મેમ હું તો નથી સૂતો. હું અત્યારે હમણાં રિપોર્ટ કરાવવા ગયો તો એટલે લેટ જોઈન થયો. જાગૃતિ હસે છે. જાગૃતિ કે હું સૂતી હતી. है ना जागृति? थोड़ी बार सुई गई थी ना बच्चे क्लास में? नो मैम, सोती सोती प्लेसमेंट का भी काम था मैम इसके लिए. ओहो हो, कितना काम करते हो आप लोग. यस मैम. ऐसे तो नहीं होता ना कि जल्दी से एमबीए कंप्लीट हो जाए, ऐसे मन तो नहीं होता ना कभी? होता है मैम पता ही नहीं चला ना कब खत्म हो गया. हाँ मैम हमको नहीं करना है तो भी कॉलेज वाले जल्दी कंप्लीट कर दे रहे. फेब में तो स्टार्ट हुआ है सेकंड से, अप्रैल में खत्म हो जाएगा. अरे तुम देखो बैठे बैठे तो तुम्हारा दिसंबर तक आप एमबीए भी हो जाओगे. बस बस अदिति बस जागृति बहुत हमें हंसा था. मैम ये बीओएम टाइप में सब कॉन्ट्रैक्टिंग दिखा रहा है वो क्या होता है? हाय हाय આ છોકરાને 15-20 મિનિટ પહેલા મેં સબ કોન્ટ્રાક્ટિંગ શીખવાડ્યું હતું. મિત લાલવાની. Did I taught? Yes. હા યા ના? કૃણાલ તું સૂવે છે, જાગે છે કે તું શું કરે છે? જાગું છું મેમ. અને તું પોતે સ્ક્રીન શેર કરે છે અને મેં તમને આ ત્રણેયનો મતલબ સમજાવ્યો કે મેન્યુફેક્ચર ધીસ પ્રોડક્ટ એટલે શું, કિટ નો મતલબ શું ને સબ કોન્ટ્રાક્ટિંગ નો મતલબ શું. Ask your friends, huh? Now that is very difficult. I can't repeat these things again and again. क्या હતું તારું ધ્યાન? શું કરતો હતો તું? આ વિડિયો સ્ટાર્ટ થયો એની પહેલા I taught you that what do you mean by subcontracting. Did I? Sorry ma'am. વર્ષા શું કરીશ સોરી કહીને? હમણાં તો તું એમબીએ પતાવીને જતોય રહીશ. પ્લેસમેન્ટ એ તમારી કમિટી કેટલું કામ કરે છે. તું આ લેક્ચર પતશે તું પ્લેસમેન્ટ પણ તારું થઈ જશે એવું થશે. આવું નહીં કરું પ્લીઝ. ટીચરે તમને પ્લીઝ કેવું પડે છે. તું પાછો બિલ ઓફ મટીરિયલમાં ક્યાંથી આવી ગયો? વોટ આર યુ ડુઇંગ? कंपोनेंट्स और ऑपरेशन का किया ना. कितने कंपोनेंट्स आपने? मदरबोर्ड बनाया और क्या बनाया? ऐड लाइन, फटाफट लाइन ऐड करो. और क्या बनाया आपने? एक ही बोला था ना. अच्छा एक ही प्रोडक्ट बनाया. कौन लैपटॉप एक ही बनाना है? आपको 2-3 लैपटॉप नहीं बनाने हैं? कितने लैपटॉप्स बनाने हैं आपको? 2 ही लैपटॉप बनाओ. अरे बनाओ ना 5. आपको क्या जाता है? हाँ ठीक है 5 लैपटॉप बना दिए. मेरा बिल ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो गया. अब मुझे क्या करना है? मुझे मेरे कंपोनेंट्स को परचेज करना है. मेरे को माइनस में काम नहीं करना है. इफ आई क्लिक ऑन प्रोडक्शन राइट व्हेन आई गो टू आई क्रिएट एमओ एंड इफ आई क्लिक ऑन प्रोडक्शन तो ये सभी लैपटॉप क्लास एंड मदरबोर्ड माइनस में चले जाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों कंपोनेंट्स को हम लोग परचेज करेंगे. परचेज करने के बाद हम उसको मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी डालेंगे. फिर लैपटॉप का मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी मतलब रिप्लेनिशमेंट करेंगे और फिर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. चलो फास्ट. मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स देती हूँ. आई विल गिव यू 5 मिनट्स. एवरीवन प्लीज हेल्प कृणाल. आपने बोला ना आपने कॉन्टेक्स्ट बना के रखे हैं. अच्छा आपने सिलेक्ट कर दिया. ओके 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 ओके. ક્વોન્ટિટી લખવાની હતી. થોડા ક્વોન્ટિટી
શેમાં ક્વોન્ટિટી? લેપટોપ ગ્લાસમાં ક્વોન્ટિટી લખવાની રહી ગઈ છે. Did he mention quantity? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. And what have you selected? Did you selected component? I just miss seeing that. Rural state select. સ્ટેટ નાખું છું પણ જતું રહે યાર દર વખતે. ગૂગલ માં એડ્રેસ સેવ કરી દીધું હશે. ગુજરાત નથી આવતું? છે નીચે સિલેક્ટ કરો. એમ નહીં કરો, જો ત્યાં તમને ઓલરેડી દેખાય છે ને ઉપર. યા આવી ગયું. परचेज हो गया आपका? परचेज इज डन? यस मैम. कितने परचेज किया आपने? दोनों प्रोडक्ट को परचेज कर दिया, दोनों कंपोनेंट को परचेज कर दिए? यस मैम. ओके चलो इसका फटाफट से तीनों. अच्छा लैपटॉप नहीं, लैपटॉप को कुछ नहीं करना अभी. आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की? दोनों में 5 है. तो फिर मिनिमम 100 कैसे लिखा? तो मिनिमम 5 क्यों लिख रहे हो? आपको परचेज करनी चाहिए थी 20 या 15 या 10, मोर देन मिनिमम क्वांटिटी. गेटिंग? यस. कुछ नहीं, यहाँ पे अभी मिनिमम क्वांटिटी लिखो और वहां पे जाके आप चेंज कर देना. रुराल रूट सिलेक्ट करना रह गया. अरे भाई वहीं पे वो ऊपर से दोनों बंद कर दो, टू रिकॉर्ड नोट्स नोट वाला.
वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग, इसलिए वो मैन्युफैक्चर सेलेक्ट करेंगे. ओके सॉरी इसको बाय करो, दोनों को बाय करो. हम लोग लैपटॉप ग्लास और मदरबोर्ड बाय करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते वेंडर से. फास्ट कृणाल. ચલો તમે ફટાફટ તમારા પરચેઝમાં જાઓ, પરચેઝ ઓર્ડર પર, અને તમારે ત્યાં જેટલા પણ તમે પરચેઝ કરજો ને એનું ફિગર તમે ચેન્જ કરી દો એડિટ કરીને. પીઓ બનાવ્યું છે ને आपने बिल तो क्रिएट ही नहीं किया, आरएफ क्यों ही है, ऊपर दिख भी रहा है. ठीक है पहले सुनो पहले इधर चेंज करो. अरे भगवान छोकरो तो जाओ. क्वांटिटी चेंज कर दो, कितनी क्वांटिटी चाहिए. લેપટોપ ગ્લાસ અને મધરબોર્ડ બંને મેક્સિમમ ક્વોન્ટિટી લખી કાઢો અહીંયા. એટલે તમારી મેક્સિમમ ક્વોન્ટિટી કેટલી છે ત્યાં કેટલી લખી હતી તમે? 20. હા 20 લખો ને. ઓકે કમ ઓન. નાઉ ધ રિમેનિંગ ટાસ્ક કમ્પ્લીટેડ ફાસ્ટ. વેન્ડર બિલ છે ઉપર, અહીંયા ક્રિએટ બિલ પર ક્લિક કર દો. જો બે બની ગયા છે તમારી પાસે, બે બિલ બની ગયા કે એક જ બિલ છે? બે રિસીટ કેમ બતાવે છે? Why it is showing two receipts? मैम पहले उसने वैलिडेट किया था ना 5 क्वांटिटी, तो फर्स्ट हुआ और बाद में उसने 20 कर दी, तो 50 क्वांटिटी अभी रिसीव करनी बाकी है. 50 अभी हम वैलिडेट नहीं करेंगे वेयर हाउस में. तो जो फर्स्ट है ना उसको निकाल दो. ये Yes. उसको निकाल दो, फर्स्ट वाला जो है ना 1 लिखो છે ને બેટા. આરામથી કરો, કન્ફ્યુઝ નહીં થાઓ. આને બંધ કરી દો, ટોટલી બધું બંધ કરી દો. મેં તમને શું કીધું, જે તમારું ફર્સ્ટ પરચેસ ઓર્ડર બન્યું છે ને એને ડિલીટ કરી દો. ઓકે ગો બેક. ઓકે એક જ રહ્યું આ 84,000 વાળું છે, ઓલું તમે ડિલીટ કરી દીધું. ના તમારું કાનબાન વ્યૂમાં જાઓ, રિપોર્ટ્સમાં કાનબાન વ્યૂમાં જાઓ તો પરચેસ ઓર્ડરના ડેશબોર્ડમાં જાઓ. આમાં નહીં બેટા, ક્યાં જવાનું? પરચેસ ઓર્ડરનો ડેશબોર્ડ ક્યાં છે? આ જ છે ને? તો આમાં જે P002 તમારું ડિલીટ થઈ ગયું. હેવ યુ ડિલીટેડ ધેટ થિંગ? मैंने 1 માં જ ક્વોન્ટિટી ચેન્જ કરી દીધી ના. હા ઈ તો ખબર છે, બિલ એક જ છે, બટ આ પ્રોડક્ટ એને ફર્સ્ટ 5 ક્વોન્ટિટી રિસીવ કરી દીધું, તો એનું જે વેરહાઉસ નું બિલ હતું એ રિસિપ્ટ અલગ બની, અને પછી ક્વોન્ટિટી ચેન્જ કરી તો હજી એ રિસિપ્ટ બીજી એક બની ગઈ, કેમ કે એ હજી રિસીવ નથી કર્યા. તો વેરહાઉસમાં જઈને તમારે કમ્પ્લીટ કરવું પડશે, રાઈટ? Yes, અને આને ક્લિક કર, અને આ ઓર્ડર ને ક્લિક કર. યસ હવે આની અંદર સ્ક્રોલ ડાઉન. ઓકે જો આમાં રિસીવ્ડ 5 બતાવે છે અને બિલ્ડ પણ 5 બતાવે છે, દેખાય છે? યુ આર ગેટિંગ? સમજ પડે છે શું થાય છે? યસ મેમ. શું થયું? 5 રિસીવ થયા અને 5 નું બિલ બન્યું છે. તો હવે શું થશે, કેટલા પ્રોડક્ટ્સ ટોટલ થશે? પહેલા આને તમે વેલિડેટ કરો, આને આખું એક પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ કરો અને આરામથી કરો, ઉતાવળ કરવાની કઈ જ જરૂર નથી. રિસીવ કરો પ્રોડક્ટ ફર્સ્ટ, પરફેક્ટ. હવે તમે અહીંયા જુઓ વેરહાઉસ જે આપણે આની પહેલા કર્યું હતું ને સેકન્ડ વાળું, હા આને ઓપન કરો. આ 5 ક્વોન્ટિટી વાળું છે ને, આને ડિલીટ કરો. કેતે ડિલીટ કરશો? कैसे डिलीट कर सूं? How will delete? प्रियांशु आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंट के लिए ही क्लास में हो कि सीख रहे हो? नहीं मैम सीख रहा हूँ. सीख रहे हो? कितने दिन के बाद आए क्लास में? 2-3 लेक्चर्स के बाद. क्या कर रहे थे? चलो તમે તમારું कंप्लीट करो या करो. बाहर जाओ, ट्रांसफर्स पर क्लिक करो,
ક્લિક ઓન ટ્રાન્સફર્સ. ઓકે, એના પર સિલેક્ટ કરો. સિલેક્ટ કેવી રીતે કરવાનું? ચેકબોક્સ કૃણાલ, ચેકબોક્સ. પછી શું કરવાનું? એક્શન્સ પર ક્લિક કરો. હવે ડિલીટ. શું કહે છે? તમે વાંચ્યું ખરા? શું કહે છે? record. Think set to be done. Create a return in order to reverse the moves which took place. તમારે શું કરવું પડશે? રિટર્ન કરવું પડશે મેમ. થશે કૃણાલ? અરે હા કૃણાલ થશે. ક્લોઝ કરો. ક્લોઝ કરો. ઓકે, કેવી રીતે રિટર્ન કરશો? એક્શન્સ માં જઈને જુઓ છે એના માટે કયો ઓપ્શન છે? એમાં ઓપ્શન છે નીચે વેલિડેટ અને અનરિઝર્વ શું છે? મેમ એના ડેશબોર્ડમાં જ થશે મે બી 001 ના ડેશબોર્ડમાં જ થશે. જાઓ કૃણાલ, ક્લિક ઓન 001. received. એમાં ફર્સ્ટ હા અરે ભાઈ નહીં ફર્સ્ટ નહીં નીચે મારા ત્યાં ઉપર છે રિટર્ન. પ્રિન્ટ ની બાજુમાં we are learning something new. Validate. Confirm. Very good. Very good, Vishal. Vishal, I want to place you in IT company. Thank you, ma'am. ના ના થેન્ક યુ નહીં, એટલે તને કહું છું આવું છે કે નહીં. જવું છે? પ્લેસ થવું છે કે નથી થવું? મેમ સોફ્ટવેર તો આવડે છે એવું નથી, બટ ફંક્શનલી તારે ફંક્શનલ માં જ જવાનું. યસ મેમ. તને જવું હોય તો મને કહેજે. શ્યોર મેમ. બહુ વાર લાગે છે. चलो અત્યારના જે છે એને रिसीव करो, आगे बढ़ो. चलो क्या हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है? क्या हुआ? पहले देखो કૃણાલ, એને ઓબ્ઝર્વ કરો. ધમાધમ તમે ક્લિક કરો છો. તમે પહેલા એને તમારું ડેશબોર્ડ ને ઓબ્ઝર્વ કરો. સેના પર તમે રિસીવ કર્યું, સેને ક્રિએટ બિલ કરો છો. આ પરચેઝ ઓર્ડર આનું બની ગયું? ક્લિક કરો આના પર. આનું પરચેઝ ઓર્ડર થઈ ગયું? હજી તો રિસીવ પ્રોડક્ટ બનવાનું બાકી છે. રિસીવ પ્રોડક્ટ કરો. પહેલા રિસીવ પ્રોડક્ટ કરો. પ્રોડક્ટ રિસીવ થયું છે? પ્રોડક્ટ રિસીવ થયું? વેલિડેટ કરો. વેલિડેટ કરો. હવે ક્યાં જશું ફરીથી? કોન્ફિડન્સ રહો. અગર રોંગ પડશે તો શું થશે? 10 મિનિટ વધારે. હા ક્લિક કરો. ઓકે, હવે બિલ ને ક્રિએટ કરો. રિક્વેસ્ટ ઓર્ડર ને પરચેસ અરે બિલ ડેટ લખવું પડશે ને તમારે. અને નીચે સ્ક્રોલ કરો કે કેટલા પ્રોડક્ટ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં પ્રોડક્ટ આવ્યા છે. કેટલા પ્રોડક્ટ્સ આવ્યા? 10 ક્વોન્ટિટી થઈ ગઈ તારી પાસે? વાય સો વાય? ખબર પડી કેમ આવું થયું? પહેલાથી કેટલા પરચેસ કર્યા હતા? હાઉ મચ યુ હેડ પરચેસ્ડ? પહેલા 5 હતા ને પછી 20 નાખે. પહેલા 5 પરચેસ કર્યા? યસ. એને તે વેલિડેટ કર્યું? યસ. પછી તારા ગોડાઉન માં આવી ગયું તો એને વેલિડેટ કર્યું તો એનું તારા વેરહાઉસ ની અંદર આવ્યું? આપણે બિલ ક્રિએટ કર્યું તો એનું? યસ. યસ કે નો? મીત સરોલા. Yes, ma'am. What happened? So, ma'am?